Good morning, all of you. Welcome to your SSD class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 7, that is Lifeline of Indian National Economy. Okay, so in this chapter, we are learning about the means of transport, and in my previous video, I discussed with you the waterways, in which we learn the major national highways, waterways, as well as the major seaport of our country. Now, in today's topic, I am covering the airways. Airways, as you all know, that this is also a important mean of transport, because in the far away places or the places those are not easily connected with the roadways and railways, in that areas we can easily approach through airways only. Okay, so it is very important mean of transport also. Chaliye, let us read it. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. Yes, this is right. Fastest, most comfortable and prestigious mode of transport है ये, and it can cover very difficult terrain like high mountains, dreary deserts, dense forest, and also long oceanic stretches with great ease. Think of the northeastern part of the country, marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest, and frequent floods and international frontiers, etc., in the absence of air transport. But he said कि just think कि अगर हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट ना होता तो हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में किस तरह से अपने आप को पहुंचाते। जैसे जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, डिसेक्टेड रिलीफ है, मतलब रिलीफ जो है बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड सा है, कहीं माउंटेनियस है, कहीं प्लेन एरियाज आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस, एंड डेंस फॉरेस्ट हैं। ठीक है, सो frequent floods are very common in that areas and international frontiers etc in the absence of air transport. एयर ट्रेवल हैज़ मेड असेस ईजियर। एयर ट्रेवल हमारे असेस को क्या बना देते हैं, ईजियर बना देते हैं। और द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो नेशनलाइज कौन से सन में हुआ, इन द ईयर 1953। On the operational side, Indian Airlines, Alliance Air, subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air services. Now, here we have two type of airlines, domestic airlines and international airlines. तो जो domestic airlines हैं, that is move within the country. The country जो कंट्री में स्टेट टू स्टेट मूव करती हैं वो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, एंड इंटरनेशनल एयरलाइन मीन्स दैट मूव फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ओके, तो एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953 ऑन द ऑपरेशनल साइड, और 1953 में इसको एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया. इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines and non-scheduled operate provide domestic air services. ये इंडियन एयरलाइंस हमें जो है एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है. और जो एयर इंडिया है दैट प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. ओके, एंड वन मोर थिंग, दैट इज पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ये नेम है, प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ये पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो लिमिटेड प्रोवाइड्स है सर्विसेज है, ये हमें ऑयल और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशंस, and also sometime also helpful during the time of floods और natural जो disasters होते हैं उस टाइम पे भी लोगों को सामान पहुंचाने में उस in all that operations Pawan Hans helicopters is helpful for us. Okay, now to accessible areas and difficult terrains like the northeastern state and the interior part of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, Indian Airlines operations also extended to the neighboring countries of South and Southeast Asia and Middle East also. What he said कि
to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and interior parts of Jammu and Kashmir. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है एयरलाइंस हमारी हेल्प करती है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द नेबरिंग कंट्रीज. इंडियन एयरलाइंस के ऑपरेशन हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज तक भी एक्सटेंडेड है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में. ओके, सो दिस इज एयर ट्रैवल. ये एयर ट्रैवल है. एंड एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, that normal people cannot be able to be traveled by air, because this is not the cheapest or not the cheap mode of transport. It is the costly mode of transport. It is only in the northeastern state that special provisions were made to extend the service to the common people. सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई हैं कॉमन पीपल के लिए. मतलब ये कह सकते हैं कि इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वी हैव सम एयरवेज एट सम चीप लेवल. कुछ चीप लेवल पर है, सो दैट कि जो कॉमन पीपल है वो भी इसको अप्रोच कर सके. अदरवाइज दिस इज़ नॉट द चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कॉमन पीपल कैन नॉट बी एबल टू यूज़ दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं कर पाता. ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट योर एयरवेज. ये सारा का सारा हमने एयरवेज के बारे में. एयरवेज की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, दैट दिस इज़ द comfortable and prestigious mode of transport. ठीक है. सेकेंडली, इट मेक इट ईजी to be reach in the difficult terrains, high mountainous region, desert and dense forest regions में हमारी जो पहुँच है, हमारी रीच है, उसको ईजी करता है एयरवेज. ठीक है. एंड नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो नेशनलाइज्ड इन 1953. 1953 में नेशनलाइज्ड हुआ. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दैट इंडियन एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स डोमेस्टिक सर्विसेज और एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल सर्विसेज. ओके. एंड द पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो हैं दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशंस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं आपकी. अदरवाइज मीन्स इफ यू हैव अ शॉर्ट नोट देन देयर इज अ 5 points regarding the airways. Okay, that's it towards airways. Now come on the next topic, that is the communication. Now communication, you all know what do you mean by communication. What is communication? Communication when we are able to connect with the other peoples. जब हम दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, that is called communication. हम उसे communication कहते हैं. ठीक है. Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication. जब से मनुष्य अर्थ पर आया है, वो डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करता आया है टू बी कनेक्ट विद द अदर्स. दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों को अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन की ही हेल्प लेते हैं. और इन फॉर कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मीन है. जब हम बात करते हैं, बातचीत मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है. और यही मीन ऑफ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर हैविंग द लिंक विद द फार अवे प्लेसेस. जब हम दूर बैठे लोगों के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करवा पाते, बातचीत कर पाते हैं, तो यही मीन ऑफ कम्युनिकेशन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ कुड यू टेल मी कि हम हाउ वी आर कम्युनिकेट विद द फार अवे प्लेसेस. हम फार अवे प्लेसेस पे जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? बाय यूजिंग, हियर वी हैव 2 मेन मेथड्स. एक तो वो जिसमें हम पर्सनल कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन में भी हम व्हेन वी आर यूजिंग फोन्स. ठीक है. तो फोन्स पर्सनल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. जब हम अपने किसी पर्सन को इंडिविजुअली फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, वो पर्सनल कम्युनिकेशन है. इफ़ वी आर राइटिंग अ लेटर टू आवर फ्रेंड एंड टू आवर एनी रिलेटिव, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड
पर्सनल कम्युनिकेशन, वो पर्सनल कम्युनिकेशन है. मास कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी आर having try to be connected with the large number of people, large section of the people. जब हम ज़्यादा लोगों के साथ एक ही टाइम पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. हम उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं. जस्ट लाइक टीवीज, व्हेन द न्यूज़ इज़ ऑन टीवी पर जब न्यूज़ है तो वो एक सेम टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है. तो वो एग्जाम्पल है मास कम्युनिकेशन का. ठीक है. इसी तरह से जब वी आर टॉकिंग अबाउट द टीवी के अलावा जैसे इंटरनेट पर जब हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो भी मास कम्युनिकेशन है. ठीक है. मीडिया लाइक मैगजीन्स, बुक्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. वो मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है. ठीक है. चलो लेट अस रीड अबाउट द कम्युनिकेशन. एवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. Personal communication and mass communication, including TV, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. Right now, ki personal and mass communication. Indian postal network is the largest in the world. जब हम पोस्ट कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, तो भी एक हम कम्युनिकेशन का एक मीन है वो भी. और भारत में जो पोस्टल नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड. इट हैंडल पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन. कार्ड्स एंड इनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. पार्सल्स और लेटर्स ये हमारे पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये एयर सर्विसेज के थ्रू जो हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कवर करते हैं. ठीक है. सेकेंड क्लास मेल इंक्लूडिंग yes, it handled parcel as well as a personal written communication. Cards and envelopes were considered the first class mail. Air lifted between station covering both land and air. The second class mail includes book, packets, registered newspapers and periodicals. फर्स्ट क्लास में तो हमारी लेटर्स और पार्सल्स आ रहे हैं. सेकंड क्लास मेल्स में न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मैगजीन्स आती हैं. ठीक है. पैकेट्स दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ये सरफेस मेल को कर रहा है जिसमें लैंड और वाटर के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और जो लेटर्स वगैरह हैं वो एयर और लैंड के थ्रू हम कर रहे हैं. ठीक है. To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. मतलब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने 6 मेल चैनल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं इन द कंट्री. दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल. अब यू हैव टू बी लर्न दीज 6 मेल चैनल्स. आपको ये 6 मेल चैनल्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए. वन इज़ राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड periodical channels. Okay, these are the channels that are introduced by our postal department to facilitate the quick delivery of mails. Okay, so this is about your communication. अब communication में another mean of transport पढ़ेंगे, that is mass mean of communication. जो मैंने अभी आपको बताया कि रेडियोज़ के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू हम मास कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. बिफोर गोइंग टू मास कम्युनिकेशन, here we have using the one of the largest telecom network in Asia. Telephones. इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है जिसके थ्रू हम विलेजेस को भी कवर कर रहे हैं. वी हैव एस टी डीज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग विद इन द कंट्री. टेलीफोन फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाती हैं एस टी डीज. और अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टोल यू दैट एस टी डीज, आई एस डीज, एस टी डी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और आई एस डी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है. बट
नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. ये पुराने टाइम पर हम यूज़ करते थे STDs और ISDs. अब तो मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो एवरी पर्सन हैव ईज़िली कनेक्टेड विद द अदर कंट्रीज़. हर पर्सन दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ और अपने कंट्री में लोगों के साथ बड़ी ईज़िली कनेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, चलिए फिर भी order to strengthen the flow the information from the grassroots to the higher level. Okay, and the government has made special provisions to extend 24 hours STD facilities to every village into the country. This is a uniform rate of STDs facilities all over India, and it has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. Okay, नाउ कम ऑन मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है टीवी एंड रेडियो. टीवी एंड रेडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन. अनदर वंस आर न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स. All India Radio broadcasts a variety of programs in national, regional and local language for various categories of people. आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो. आज भी बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, एंड दैट प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट टू द लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल. ठीक है, स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. दूरदर्शन जो हमारा DD नेशनल नेटवर्क है, नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, and it broadcasts a variety of programs for entertainment, educational, to sports, etc. and for people of different age groups. different age group के लोगों के लिए जो हम TV और रेडियो जो है they are used by these peoples. Okay, so this is your mass communication. न्यूज़पेपर है ये. आज भी इंडिया में न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट, इंडिया में क्या, न्यूज़पेपर आज के डे में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हालांकि वी हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ ऑन इंटरनेट, बट स्टिल न्यूज़पेपर हैज़ इट्स ओन रोल. न्यूज़पेपर का अपना एक रोल है, एंड पीपल आर ईगर टू बी रीड द न्यूज़पेपर. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी. पीरियोडिकल्स भी आते हैं. पीरियोडिकल्स मैंने अभी आपको बताया जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद मैगजीन्स आती हैं. दे आर कॉल्ड पीरियोडिकल्स. जैसे महीने में एक बार, 6 महीने में, 3 महीने में, या 4 महीने में, या 15 दिन में, तो वो पीरियोडिकल्स होती हैं. ठीक है, अब न्यूज़पेपर की बात करें तो इन आर कंट्री नियर अबाउट 100 लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं. डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू. ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर है वो हिंदी में पब्लिश हो रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में, एंड थर्ड नंबर पर उर्दू में. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो. साल में बहुत सारी मूवीज़ हमारा जो बॉलीवुड है वो निकालता है. ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स. और यहाँ पर एक सेंट्रल बोर्ड है फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, जो कि सभी मूवीज़ को अथॉरिटी करता है और उनको सर्टिफाई करता है. एवरी मूवी इज़ सर्टिफाइड फर्स्ट बाय दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. उसके द्वारा पहले सर्टिफाई होती है, देन इट इज़ लॉन्च्ड, देन इट इज़ सीन बाय द नॉर्मल पब्लिक, और वी कैन से कॉमन पीपल. ओके, तो सेंट्रल बोर्ड जो है हर मूवी को पहले चेकआउट करता है, आइदर दिस इज़ गुड फॉर द पीपल और नॉट. ठीक है, बिकॉज मूवीज़ का मेन पर्पस 2 होते हैं, एक तो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना और दूसरा एंटरटेनमेंट करना. तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को वो कैरी ऑन करने चाहिए, और उसमें कुछ रॉन्ग नहीं दिखाया जाना चाहिए. ये मेनली चीज़ चेकआउट करता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म. ठीक है, सो दिस इज़ आर कम्युनिकेशन. Okay, now the 2 or 3 topics are left of this chapter. One is international trade and second is tourism. Only 2 topics are left. We will discuss these 2 topics in the next video. Okay,
So till then, goodbye. Thank you.